Hello everyone and good morning. Let's quickly start with what we were doing from past three sessions. That's a big time. So I would be going to developer console quickly. And what are we doing? We are trying to build up a whole set of business logic where we wanted to get integrated with one of the standalone Java based application, and that's the Bootstrap code. As of now, I'm trying to build up a front end by using a Visual Force programming. And what we are aimed is we would be transferring the postal pin code value from this front end, and we're going to get the response in the form of JSON. We're going to pass it, and so we would going to, display that in the form of a table. I have created one class which where I haven't written anything so far, but at least we have created a class. So yesterday I was telling the method, the URL method by which you can create your own Visual Force pages. So that is what we have seen. All right. So this is my Visual Force page which I have created yesterday. It's logicless. I haven't I haven't copied and pasted out anything out of over here. So what I'm going to do would be I'll quickly copy this code from here, and then, you know, I would be I would be explaining you this. So don't have to worry about it. Let me copy it from section header part and up to over here, I would be copying this and pasting out within this context. So every Apex page always starts with a tab called as Apex page. Every Visual Force page, sorry, I guess I said Apex page. No, no, no. Every Visual Force page always starts. See, Visual Force is also a tag-based language, just like your HTML. All right, just like your HTML and JavaScript. The Visual Force page is also a tag-based language. It's an outdated technology, although, but still at few of the places which where the client have not migrated them in the latest technology, they are still using a Visual Force programming. That's why we should definitely have an idea, even though Salesforce haven't announced to decommission this so far. तो भाई अगर Salesforce ने इसको decommission नहीं किया है तो इसका मतलब हमें पढ़ना है. We should know that. Although we always motivated to use something which is the latest, and there are a lot many advantages with the lightning pages. There are a lot many advantages with LWC. Yes, we wanted to grab all those advantages. We wanted to get facilitated with all those benefits. So definitely we would, if we would recommend somebody, we would always going to recommend to use the lightning pages and a business logic created using lightning web component. But still there are some of the legacy places where still this Visual Force programming is still is in use. So we should, if we got a chance to work with them, we should know how to make the changes and all right. So every Visual Force page is always started with this tag. Then inside in the controller, because this is just a front end, your entire business logic is always present inside an Apex class, inside a controller. So that you have to mention the name of that controller, where the business logic has been written, the class, that Apex class, so that we just have created with the help of this URL method only. So the class name is such Indian Postal Code controller, and this is what I have written it over here. And then the setup and the sidebar and show header, these all are the small properties. I have explained that everything in detail. If you would go with my session recordings which I have shared to you, so you're going to find what is the meaning of setup and everything. All right, I would and then we define a section header. Let me try to quickly save this so that you could see the output as well. I guess the name of the class I have created something else. No, search. I'll save it. I'll quickly copy and paste it out over here. Yeah. So why it's giving the error? It's actually giving the error because the properties what we have used over here, they haven't been created yet. So there are few of the things. I mean, there are few of what I have defined
There are a lot many things which I have defined over here. Like I have defined this method particularly. Okay, there's a button for this, right? There's a button for this. As and when you would click that button, so this method is going to be get called. So because I haven't defined anything over here, that's why it's giving the error. So what we will do, one thing is like, I will come back and explain you line by line. Let me first of all design the code. Let me first of all design. I'm not going to write it over here because I wanted to get the facility of intelligence. The intelligence wouldn't appear over here. If you would create a class at this point, you will not going to see the intelligence part. So that's why, I'm going to write it over here. So what I'm going to do, see, yesterday we discussed like, we are going to get the response something like this, right? We are going to get the response something like this. Now, these two are static messages. Otherwise, if there are multiple pin codes, or sorry, if there are multiple records for a particular pin code, every record would going to be arranged like this, right? Every record would be going to be arranged like this, where these are going to be the field name, description, branch type, and everything. So what I'm going to do, what I'm going to do, I would be creating one more class. I would be creating one more class. Why I'm doing that? And you can do this with wrapper class as well. But that if you would construct it through the wrapper class, that seems to be a little complicated, although. लेकिन आप इसको रैपर से भी कर सकते हो. जैसे मेरी केस में मैं इसको रैपर से करता हूँ. एक क्लास के अंदर ही दूसरी क्लास फॉर्म करता हूँ मैं. एंड आई शो यू दैट एग्जांपल एज वेल. बट मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको सिंपल कर रहा हूँ बिकॉज आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड. अदरवाइज थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड फील हो जाए. सो आई एम क्रिएटिंग अ क्लास कॉल्ड पोस्ट ऑफिस PRANCH. Yeah. So I would be creating another class. और मैं ये सारे जो वेरिएबल्स हैं ना, दैट आई एम गोइंग टू डिफाइन इट ओवर हियर. यहाँ मैं वो सारे वेरिएबल्स डिफाइन कर देता हूँ जो इस रिस्पॉन्स में मुझे नजर आ रहे हैं. जैसे आई कैन सी नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एवरीथिंग. ठीक है. एंड दैट एवरी वेरिएबल दैट टू बी, आई वुड बी डिफाइनिंग दैम as a string. The public string name. Okay. Now there's one important thing to understand. See, usually we define a variable like this, or we give the value, whatever, right? We define a variable like this only, or we give the value. But here, I'm introducing you one fact if you go to my sessions, you would going to uh, find the explanation over there as well. But I would be explaining you. See, whatever the variable I'm defining, whatever the variable I'm defining, this whole thing, name, and उसके बाद फिर मैं description और branch type, this all is going to be the variable. मैं इस class के अंदर वो सारे variables define कर रहा हूँ. These variable I'm going to use inside Visual Force programming. So whenever if you are using a class variable or a method, नहीं not method नहीं, a class variable, कोई class के अंदर define किया हुआ variable या फिर कोई collection if you have, there is a collection, let's say list, set or map, or if there is a variable. मतलब वो हर चीज जहाँ पे आप value store कर सकते हो. So you can store the value inside a variable, single value. You can store it inside an array, multiple values of same type. You can store them. You can store the values inside collection, list collection, set collection, map collection. So every such a place where you can store the value, and then if you are referring that, if you are referring that into the Visual Force programming, if that is a variable, you are using that variable value inside a variable inside the Visual Force programming. If that's an array, and all of the values inside the array, if you are using that inside a Visual Force programming VF page. If that's a collection, if you are using it inside an Visual Force programming. So every time, whenever if you are using a variable, a collection, or an array inside Visual Force, you have to define them as get and set. Get and set. These are called as getters and setters method, right? Why? That's a rule. That's a rule. That's simply a rule. That if you would using a variable or a collection or an array, if you are using that inside a Visual Force programming, you have to define them with getter and setter methods. You have to define them with the getter and setter. I'll just quickly create everything out of this and then I'll copy and paste it every time. Even though why I'm typing this, I can even copy this as well. Branch type. Let me quickly copy this. One second. I would just copy this and then I quickly paste it. Oh, I quickly paste it out over here. I'll quickly replace this with this one. After delivery status 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8.
So after delivery status, I'll copy circle. But here I'll paste it out. You guys just concentrate. If I would I would commit any mistake, just let me know. Just let me know if I would commit any mistake. Division, वैसे तो error आ ही जाता है. Division and then region and then block. Oh, block and then state and country. See, usually in real time, I built this logic by using a wrapper class, right? The class inside another class. I would rather have created this inside in this class only, but just for simplicity of understanding for you guys, I'm creating it inside a separate place. Otherwise, usually I would have created this inside a wrapper class. Anyways, so we are having a class. The name of that class is post office branch, and this class is having all those variables. You know, we every variable over here we have given the access specifier, and we have defined them along with the getter and setter methods, gets and set, so that they can be easily used inside the visual force pages. Now, coming back to this, right? Coming back to this, here I would have to build up a logic so that I can get the data from that visual force page, send it to API, and get the response back, parse it, and accordingly display that, right? That is what I'm intended to do. All right, let's start with this. Is the most important part. See, the front end visual force programming, if you would feel that is just in front end, there's no hurdle into that. I'm going to explain you the same as well. But this is the most important. This is the most important thing you have to understand. All right. So I've created a class called Search Indian Postal Branch Controller. Now, inside in this class, the first thing which I would define is a string variable, public string, public string, public string. Let me define the name as postal pin code. And because I'm defining a variable, I have told that, variable should always be defined as get and set. Why? Because I am using them, I'm using them inside Visual Force page. Otherwise, you don't have to do this. You don't have to do this. So because I'm using these variables are intended to either get the value or send the value. These variables can get the value from Visual Force programming, or they might transfer something from here to Visual Force programming. That's why get and set. That's why get. And there's a pair. There's a pair. Don't individually define this. Don't individually define it. It's far beyond sending and receiving the data. When you set a variable or a collection as a get and set, there's an internal channel is associated. A bidirectional communication between a Visual Force page and that particular variable or a collection has been established internally. So don't think like if I would be just setting the value, I would use only set method. If I'm just getting the value, I would use only get method. Why should I use both of them? No, don't think like that. So that is what I was trying to say. Okay, the discussion is beyond that. हाँ, फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई वाज सेइंग, अच्छा देखो यार, जब तुम वैल्यूज ट्रांसफर करते हो, जैसे कि कोई वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हो तो गेट मेथड है, या फिर वैल्यू सेट कर रहे हो तो सेट मेथड है ना, ऐसा है, तो यू ऑलवेज हैव टू यूज गेट एंड सेट. बट दिस इज नॉट व्हाट यू जस्ट हैव टू अज्यूम. देयर इज समथिंग व्हिच इज अगेन गोइंग बियॉन्ड दिस concept. So when we use get and set, it establish a bidirectional communication between that particular code, a variable or whatever it is, collection, and that Visual Force pages. It make it available for the Visual Force programming as well. Actually क्या होता है ना, Visual Force पेज को कंपाइल करने के लिए एक Visual Force का कंपाइलर होता है, VF कंपाइलर. एपेक्स कोड को कंपाइल करने के लिए आपको force.com होता है, एपेक्स रन टाइम इंजन होता है ना. तो देयर आर टू सेपरेट कंपाइलर, देयर आर टू सेपरेट रन टाइम इंजन्स, वन फॉर Visual Force, वन फॉर दी आपका एपेक्स प्रोग्रामिंग. To make that internal communication between these two compilers, हमको ना कुछ set of rules follow करने करते हैं. So that is what is get and set. All right. चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, why I have taken this variable? So I take you to the program. Here I have defined. Here I have defined. See, what is going to be happen?
Now, for an instance, let's not insert the comments over here. Okay, see, what is going to be happen would be, unless and until I would define this, it's going to give me the error. Actually, there is an input text here. अभी display नहीं हो रहा because there are errors over here. All right, I shall do one thing. Let me write down the codes, and then I would be explaining that whole communication what is happening. So there is an input text which I have defined जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ enter the text variable, उसकी value, that value मैं बताऊंगा, फिर से repeat करूंगा, I'll repeat everything out of this. तो उसकी value I'm transferring, this is dynamic assignment. I'm transferring this to a variable postal pin code नाम का, there's a variable postal pin code, and that postal pin code I have defined this over here. This variable I have defined. तो what is going to be happen would be like front end से जो value आएगी, मैं फिर से repeat करता हूँ, we are storing that inside postal pin code. तो जो भी postal pin code की value है, we are receiving this inside this variable. Okay, we would be receiving this inside this variable. Now, another thing would be like I would define a collection for the response, and I would define a list collection, because you can see for a single pin code, it might contain multiple records. It may have single value, it may have multiple values. That is what we just have observed. So to collect all those, I would be defining a list collection, list of what? That's the reason I have defined it. List of post office branch. See, this is a class which I have created, right? List of post office branch, this class. So multiple values, multiple records which are having name, description, branch, right? So this you can consider this as a container. You can consider this as a container, where one record has been stored, then two record, then three records of the same type. Every record out of this would be of same type. Every response would have name, description, branch, and all that, right? So that is the reason. So see, this itself is a database. This itself is a database. So whatever the kind of values which you were getting, this JSON response contains, that I have defined inside a class. Usually what we do is like, we create a wrapper class for this. But that could also be done, no problem. Of course, it makes the logic little complicated. And this is very simple to understand because two separate classes, one class where you have defined everything. So whatever the records you are getting, there could be multiple records for every pin code. Now every record would going to contain name, description, branch, and all, which we have created, which we have defined inside a class. It is as simple as अगर मैं आपसे बोलूं कि if you are receiving multiple records of account, आप क्या करते हो बताओ? It's very simple to understand. Don't think like that. अगर if you are firing a query, let's understand. If you're firing a query, select ID name from account. And if you are receiving multiple records of account, what will you define? List of account, isn't it? List of account, isn't it? Now, according to ORM, object relationship mapping, account is also a class. Like account is also a class. So list of account, list of contact, when we receive multiple, if we are receiving multiple, if we are wanted to store multiple records of contact, we would define list of contact. If you wanted to store multiple records of opportunity, you would define list of opportunity. If you wanted to store multiple records of hiring manager, you would define list of hiring manager, list of position, list of candidate. Now, these are objects. They are also classes. They are also classes. So if I have defined a class with the name called list post office branch, and now if I am defining a list of post office branch, why you are getting surprised? What is the difference? There is nothing in difference. By list of account, list of contact, list of opportunity, they are also classes. हाँ वो object भी है, yeah, वो object भी है मानता हूँ, but they are also classes. That is what we have studied according to ORM, object relationship and mapping. Every object is a class. Though it's a standard, though it's a custom. So in that way, if I have defined a class, a custom class, and now if I'm making a list of post office branch, that does not make any difference. That does not makes any difference, right? That is what I wanted you to understand. So LST branches, BRANCHES, usually commit mistakes while
in the spelling, get and set. Yeah, why this is happening every time? I guess insert का बटन दबा हुआ है मेरे से. हाँ, insert का बटन दबा. So see, I just have told you that, if ever you would define a collection or a variable, you have to, and if you are intended to use this inside inside a Visual Force programming, you have to define it with getter and setter. Now this is giving the error because मैंने अभी तक new keyword से उसको constructor के साथ में define नहीं किया है, तो that's why it's giving the error. तो वो मैं लेता हूँ अभी don't worry. ठीक है. So these are the two things which I have defined in initial stage of the program. एक variable और एक collection. ठीक है. Now let me go further with this program. And now, I would create a method, public, और else एक वेरिएबल और बनाता हूं मैं. बताता हूँ किस लिए. जस्ट टू चेक विद द रिस्पॉन्स. ये यूजुअली हम प्रोग्राम अपना जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तब ये बना के रखते हैं. एक टेम्पररी वेरिएबल रहता है जिसके थ्रू हम रिस्पॉन्स आया या नहीं आया दैट वी यूजुअली चेक. तो ये मैंने क्यों डिफाइन किया ये आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. ये तीन मेरा इनिशियल स्टेज का इनिशियलाइजेशन हो जाता है. देन आई गो फर्दर इन दिस प्रोग्राम. आई वुड नाउ क्रिएट अ मेथड public. The method which does not return anything void. It doesn't have to be static. Remember, you don't have to write down static methods because static methods, while interchanging the values, static methods creates a problem. So you don't have to define static. And now I'll go to my Visual Force page जहाँ पे मैंने बोल रखा है कि जो value है that action is search postal branches. So I would give the name of this as search postal branches. It's the name of the method. I guess if I would come back and refresh this or save this, it will still have the errors. No problem. No problem. Unless you have stored the value for every one of them, it's going to give you, the errors would be gone. No problem. Okay, so initialization, postal pin code to get the value, to receive the value inside in this. Yeah, I'll have to define this as well. So मैंने सिर्फ create किया define नहीं किया. That's why we have this error. If you wanted to see what kind of error it is, unexpected token. uh, Unexpected token. Okay, that's not because of this. That was because of the semicolon. Now probably this would go on. Yes, of course. So LST branch equals to, let me now define it. New. We usually see whenever we declare a collection, we usually follow this pattern, right? And make this as a default constructor. I have taken this inside in this method because if I would have defined over here, that could also be done. That could also be done. But then I would refer it inside this. तो वहां पर वो कहता कि I don't know what is LST branches, right? So that might have possible. इसलिए मैंने उसको अंदर ले लिया और कुछ नहीं है. So LST branches, I just have defined that. इसके बाद में न्यू पब्लिक कहाँ से आ गया यहाँ पे. न्यू लिस्ट ऑफ दिस. सेव दिस आउट. अब तो भी आई गेस ये एरर हट जाना चाहिए यहाँ से. दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. देखो, this is like, this is going to be the front end. This is going to be the front end. ठीक है. मैं आता हूँ यहाँ पे. मतलब what is going to be happen would be like, here you are going to enter the pin code. एंड अभी तो कुछ नहीं होगा. एज एंड व्हेन यू प्रेस द सर्च बटन, तो यहाँ से ये पिन कोड ट्रांसफर होगा आपके बिजनेस लॉजिक को. इट वुड सेंड इट टू द एपीआई. एपीआई को जाएगा. एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा. वो रिस्पॉन्स वापस कलेक्ट करेंगे, उसको पास करेंगे, एंड देन वी वुड गोइंग टू डिस्प्ले दिस इन दिस एरिया यहाँ पे. तो मैं ये फ्रंट एंड बाद में एक्सप्लेन करता हूँ आपको. आई जस्ट गो बैक एंड राइट द कंप्लीट कोड ऑफ दिस. ठीक है. नाउ द फर्स्ट थिंग आई वुड चेक फॉर ये वाला, इफ पोस्टल पिन कोड, यार इसकी वैल्यू होना जरूरी है. इफ पोस्टल पिन कोड इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर आपने यूजर ने वैल्यू सप्लाई नहीं करा, तो देयर इज नो मीनिंग टू कॉल दैट होल बिजनेस लॉजिक, राइट? सो इफ पोस्टल पिन कोड इज नॉट नल एंड इफ इट इज नॉट एम्प्टी, अगर ऐसा है देन एंड देन ओनली आई एम गोइंग टू राइट व्हाट एवर हैज टू बी रिटन. बिजनेस लॉजिक मेरा तभी काम करेगा जब पोस्टल पिन कोड की वैल्यू फ्रंट एंड से दी गई है. If it is not present, I'm not going to work anywhere. All right. We're not going to call any API and everything. With null parameter, we would not going to do it. Okay. So that was a thing, and you can understand. Now see, we have studied this. Let me take a quick recap. मैंने आपको जब HTTP classes कल पढ़ाई, I have told you there is a step by step. There is a step by step method what needs to be get followed. Every time you'll have to follow the same pattern.
every time. uh, just a small opinion with you guys, one small thing. All right, see, so there's a defined flow of this. If you wanted to use the HTTP classes, जो कि अभी हमें करना है, तो there is a step by step approach of this. So as in step number one, what we are going to do, let me once again revise this. So step number one, we would first of all get, ये मैं बता दूंगा आपको, इसको छोड़ो अभी, ऐसे मैं क्लास कोड पर आता हूँ. तो I mean step number one would be like, हाँ, आई वुड क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एचटीटीपी क्लास, जो कि मदर क्लास है. राम सर हैज सेड ओके. सो जो कि मदर क्लास है, पेरेंट क्लास है, उसका पहले हम एक कोई भी एक वी वुड, और आई शेल जस्ट कॉपी दिस, आई शेल जस्ट कॉपी दिस एंड आई विल टेल यू. नहीं रहने दो, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता. तो स्टेप नंबर वन, वी वुड क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ एचटीटीपी क्लास. स्टेप नंबर वन. स्टेप नंबर टू, रिक्वेस्ट फॉर्म करना. तो रिक्वेस्ट, हाउ वुड यू फॉर्म द रिक्वेस्ट? उसके लिए हमारे पास चाइल्ड क्लास है. एचटीटीपी की एक चाइल्ड क्लास होती है, दो चाइल्ड होते हैं, एक रिक्वेस्ट और एचटीटीपी रिक्वेस्ट और एचटीटीपी रिस्पॉन्स. तो द सेकंड ऑब्जेक्ट व्हिच आई वुड बी क्रिएटिंग वुड बी ऑफ द एचटीटीपी रिक्वेस्ट. पहले इसका एक ऑब्जेक्ट बना लो. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अब आप रिक्वेस्ट फॉर्म करो. सो व्हेन यू फॉर्म अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कंसिस्ट ऑफ टू और थ्री थिंग्स, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एंटिटी है. जैसे सबसे पहला है एंड पॉइंट यूआरएल और मेथड नेम. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ये नहीं देंगे आपको तो रिक्वेस्ट वुड नॉट कंसिडर टू बी अ प्रॉपर रिक्वेस्ट. ठीक है, तो आपका रिक्वेस्ट फेल हो जाएगा. So these are the two essential entities that has to be given. Apart from that, whatever you feel has to be, it should have, it should, the request should consist of those. You can give. Otherwise, you can skip. No problem. जैसे कि आपका सेट टाइम आउट टाइम वगैरह, यू गिव इट, इट वुड फॉलो. यू वोंट गिव इट, जो भी डिफॉल्ट सेट, जो भी डिफॉल्ट टाइम होता है, वो वहां पे अप्लाई हो जाता है ना. तो ऐसी कुछ चीजें. तो यू वुड फॉर्म अ रिक्वेस्ट. आपने रिक्वेस्ट बना ली. अब रिक्वेस्ट बना ली है तो उसे सेंड करना है. तो सेंड करने का जो मेथड है वो एचटीटीपी के पास होता है. एचटीटीपी क्लास सेंड कर सकता है. तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एचटीटीपी का जिसका नाम है लेट्स से पोस्टल एचटीटीपी. विद द हेल्प ऑफ दिस वी वुड गोइंग टू यूज सेंड मेथड. सेंड एंड सेंड मेथड के साथ आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी. दैट रिक्वेस्ट यू हैव क्रिएटेड along with this along with this name. So that is what you would send. When you send it, you'll have to collect the response inside response class. That's it. It's a very small thing. Although देखो, देखा जाए तो ये तीन ही स्टेप है. तीन ही स्टेप है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है ना. तो देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज नहीं है यार. स्टेप नंबर वन, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो एचटीटीपी का. स्टेप नंबर टू, रिक्वेस्ट क्रिएट करो. रिक्वेस्ट के लिए आपको एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए उसके साथ उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के यू हैव टू क्रिएट द रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट क्रिएट करते वक्त दो पैरामीटर्स बहुत एसेंशियल होते हैं. एंड पॉइंट यूआरएल और मेथड डिफाइन करनी पड़ती है. रेस्ट ऑल अदर पैरामीटर्स आर ऑप्शनल. यू, if the web service required it, you can give. Otherwise you can simply skip that. Once the request has been formed, you have to use that inside send method. Send method से उसको भेज दीजिए. और भेजने के बाद में जो भी रिस्पॉन्स आ रहा, that you would be collecting inside HTTP response variable. It's pretty simple thing यार, है ना. So I would follow the same pattern over here. ठीक है. तो अगर मेरा पोस्टल पिन कोड की वैल्यू नल नहीं है, फ्रंट एंड से मुझे वैल्यू मिली है ना, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल फॉलो द सेम पैटर्न. सो मैं सबसे पहले ना एक एक वेरिएबल है, वेरिएबल बना रहा हूँ. So I'm just creating a variable endpoint URL, nothing else. I'm just creating an endpoint URL variable. और यहाँ पे मैं I would go give that postal pin code API में जाने के बाद में you have seen that there is a URL, यानी कि if this application needs to be get hit, तो ये वाला जो URL है ना, that has to be given up to over here, यहाँ तक. क्योंकि इसके आगे तो पिन कोड रहता है. मैंने गलत ले लिया. इसके आगे तो पिन कोड रहता है ना. इसके आगे तो पिन कोड रहता है. तो अप टू दैट स्लैश ओनली, अप टू दैट स्लैश आपको उसको पिक करना है. अप टू दैट स्लैश यू हैव टू पिक इट अप. एंड दिस इज व्हाट आई वुड बी स्टोरिंग, दिस इज व्हाट आई वुड बी स्टोरिंग इनसाइड इन दिस वेरिएबल. सो द एंड पॉइंट, हाँ, रियल टाइम में हम यहाँ पे कुछ और भी यूज करते हैं. दैट विद द नेक्स्ट प्रोग्राम आई एम गोइंग टू टेल यू कस्टम सेटिंग्स. अब ये क्या है, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आई विल मेक यू अवेयर ऑफ एवरीथिंग. डोंट वरी. बस कैसा है ना, एक ही प्रोग्राम में छूड़ा नहीं करना है अपने को कि इसी में तुमने मुरमुरे डालो, इसी में तुमने छूड़ा डालो, इसी में धनिया बता दो. विल सेपरेट दिस होल. दो से तीन प्रोग्राम है मेरे पास, नो वरी. एक एक और है यूनिवर्सिटी की, एक ओपन सोर्स, एक मैंने एक बैच में लिया था. मेरे को जरा सा कोड देखने दो उसका.
वो अगर मुझे मिल जाता, एक और ओपन सोर्स एप्लीकेशन मैंने पता लगाया था, तो पता चला था एक यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन है, क्या आप यू एंटर द आई गेस सिटी नेम और कंट्री नेम, ऐसा कुछ तो भी था, स्टेट नेम, एंड यू गेट द लिस्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज ओवर, दैट्स अगेन एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। अगर वो मिलता है तो हम उसको भी इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम एग्जाम्पल देने की। तो इसके बियॉन्ड हम एंड पॉइंट यूआरएल को डायरेक्ट इस तरह से यूज नहीं करेंगे। एक कस्टम सेटिंग नाम की चीज होती है जो मैं आपको बताऊंगा, विच इज अ स्टैंडर्ड दैट नीड्स टू बी फॉलो। लेकिन पहला प्रोग्राम है, जितना हो सके हल्का समझो, जितना हो सके हल्का रखते हैं, इसलिए मैंने रैपर क्लास भी नहीं लिया इसमें। राइट, इसलिए मैंने रैपर क्लास का भी यूज नहीं किया, मैंने एक सेपरेट क्लास बना ली। हालांकि ऐसा भी करोगे तो कोई मना नहीं करेगा दोस्त, ये बात याद रखो, कोई मना नहीं करेगा तुमको। बट यूजुअली क्या करते हैं कि एक थोड़ा सा वो कहते हैं ना, वो अपना वर्चस्व दिखाने का एक तरीका होता है। यू आर अ प्रोग्रामर, आई एम नॉट अ बच्चा प्रोग्रामर, आई एम अच्छा प्रोग्रामर। तो व्हाट शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन अच्छा है ना बच्चा प्रोग्रामर, तो वो थोड़ा सा ऐसा अपना क्या बोलते हैं उसको, कोडिंग स्टाइल बताने के लिए, अपने मूव्स दिखाने के लिए, वी कंस्ट्रक्ट रैपर क्लास। तो अरे साला इसने तो कोड लिखा है, ऐसा ऐसी बात होती है। बट दिस इज अगेन इज ऑल्सो अलाउड, ऐसा कोई नहीं बोलता। हाँ ठीक है, डोंट वरी। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू दिस। तो अभी तो मैंने एंड पॉइंट यूआरएल का हैव स्टोर्ड दिस इनसाइड अ स्ट्रिंग, मैं आगे ऐसा नहीं करने वाला हूँ, मैं इसमें कुछ अलग तरीके अपनाऊंगा। आप आपको भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, आप देखो, दिस इज सिर्फ इतना ही नहीं है हमारा, इफ यू वुड हैव सीन दिस एंड पॉइंट यूआरएल, इसके आगे एक चीज और देनी पड़ती है आपको, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ पिन कोड। अगर आप सिर्फ इतना दोगे तो ये हिट नहीं होता है ना। ये सिर्फ इतना दोगे आप अगर, तो ये हिट थोड़ी ना होता है, ये हिट नहीं होता है। सी इफ आई वुड जस्ट एंटर अप टू दिस, तो यहाँ पे क्या बोलता है, रिसोर्स नॉट फाउंड। हाँ, इसके बाद में आपको पिन कोड की वैल्यू देनी है ना, यू हैव टू गिव द पिन कोड वैल्यू। उसके बाद में पिन कोड वैल्यू दोगे तब ये प्रॉपरली हिट होता है। तो इसके बाद में एक चीज और रहनी चाहिए यहाँ पे, एंड दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ पिन कोड। पिन कोड की वैल्यू, पिन कोड की वैल्यू, इफ यू वुड सी दिस, लेट्स गो बैक टू आवर विजुअल फोर्स पेज। यहाँ पर मैं पिन कोड की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, और प्रोग्रामिंग में अगर आप देखें, प्रोग्राम में अगर आप देखें एक्चुअली, ये जो है ना, एंटर द पोस्टल पिन कोड, सी एंटर द पोस्टल पिन कोड। ठीक है, दैट इज बीइंग स्टोर्ड इनसाइड अ वेरिएबल पोस्टल पिन कोड, और जिसे मैंने प्रोग्रामिंग में ट्रैक किया, ये है वो। सो इस ये एंड पॉइंट यूआरएल में आखिरी में जाने के बाद, है ना, इस एंड पॉइंट यूआरएल में आखिरी में जाने के बाद, आई वुड हैव टू कॉन्कैटिनेट वन मोर थिंग, would have to concatenate the value of postal pin code. I guess this makes sense to every one of you, right? That's the reason I'm taking this step by step, one entity at a time, right? तो सिर्फ इतना यू एंड पॉइंट यूआरएल डालने से काम नहीं बनेगा, यू आल्सो हैव टू अपेंड द वैल्यू ऑफ पोस्टल पिन कोड। अच्छा, वो पोस्टल पिन कोड की वैल्यू अपन ने कहाँ लाई है? फ्रंट एंड से, when somebody is entering it inside, when someone is entering with this text box, we are collecting that inside a variable, the name called postal pin code. This is that variable. So I'm appending the value of this postal pin code at the end of this URL. I hope that makes sense to every one of you. हाँ, तो अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आप वहां एंटर करोगे वो यहाँ पर आके अपेंड हो जाए। ठीक है, now that makes a complete endpoint URL. That makes it a complete endpoint URL. After that, अब मैं आता हूं अपनी HTTP क्लासेस की तरफ, जो हमने जस्ट अभी सीखा। एक बार और देख लो। पहले HTTP का वेरिएबल बनाओगे, फिर HTTP रिक्वेस्ट से रिक्वेस्ट फॉर्म करोगे, यहां तक रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट को सेंड करोगे सेंड मेथड से, और रिस्पॉन्स कलेक्ट करोगे HTTP रिस्पॉन्स, 1 2 3। ठीक है, चलो आओ देखो, सेम थिंग, नथिंग एल्स, कोई डिफरेंस नहीं। HTTP, पहले HTTP का वेरिएबल बनाऊंगा, पोस्टल, यू कैन गिव एनी नेम, नो प्रॉब्लम, पोस्टल HTTP इक्वल्स टू न्यू HTTP। HTTP का वेरिएबल बनाया, HTTP का वेरिएबल ऑब्जेक्ट, जो भी बोलना चाहते हैं, बट सेम थिंग। HTTP का वेरिएबल बनाया, HTTP का ऑब्जेक्ट बनाया। अब रिक्वेस्ट बनाऊंगा, रिक्वेस्ट कहां से बनती है? HTTP रिक्वेस्ट, HTTP, अरे क्या कर रहा हूं, हाँ सही कहा, HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट। चलो एक वेरिएबल दो, एक कुछ भी एक वेरिएबल दो, जैसे कि पोस्टल, पोस्टल रिक्वेस्ट इक्वल्स टू न्यू HTTP रिक्वेस्ट। ये बन गया आपका HTTP रिक्वेस्ट का वेरिएबल या ऑब्जेक्ट, जो भी आप बोलना चाहते हैं। ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर गोइंग टू फॉर्म द रिक्वेस्ट। अब हम रिक्वेस्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, विद हेल्प ऑफ दिस वी आर गोइंग टू फॉर्म द रिक्वेस्ट। पोस्टल रिक्वेस्ट डॉट, देखो इतनी मेथड्स होती हैं, इतनी मेथड्स, सारी मेथड्स नहीं लगती हैं अपने,
isn't it? We don't require every method. जो जरूरी है वो, जैसे एंड पॉइंट जरूरी है, सेट एंड पॉइंट यूआरएल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एंड पॉइंट जो है, यू कैन डायरेक्टली ये यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी डाल सकते हो आप, ये भी है, ये भी अलाउड है। और जैसे कि अपन ने इसको, वी हैव स्टोर्ड दिस इनसाइड अ वेरिएबल, तो वो वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, ये भी अलाउड है, दोनों अलाउड है। आगे तो ये भी नहीं करने वाला हूँ, आगे हम कस्टम सेटिंग यूज करेंगे इसके लिए, वो देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। चलो ठीक है, दैट वाज वन थिंग, दैट वाज वन थिंग। द सेकंड थिंग, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, पोस्टल रिक्वेस्ट डॉट मेथड नेम। ठीक है, सेट, सेट मेथड। तो मेथड कौन सी है ये आप अज्यूम नहीं कर सकते, यू विल हैव टू गो थ्रू द डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे दिया जाता है। लेट्स कंसीडर दिस एज अ डॉक्यूमेंट, तो इट इज स्पेसिफाइंग कि मेथड जो यूज हो रही है दैट्स अ गेट मेथड। कौन सी मेथड यूज हो रही है यहाँ पे? गेट मेथड। तो दैट इज व्हाट यू विल हैव टू राइट इट ओवर हियर, ये आप अज्यूम नहीं कर सकते, आपको एज इट इज लिखना पड़ता है। ठीक है, now these two are the important parameters, ये तो जरूरी है, ये मैंडेटरी है। अब इसके बाद में दूसरा, जैसे टाइम आउट वगैरह रहना या नहीं रहना, वो सब आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, वेदर यू वांट इट इज और नॉट। सो पोस्टल रिक्वेस्ट डॉट सेट, सेट टाइम आउट, आई वुड, ये मिली सेकेंड्स के फॉर्म में रहता है, आई गेस 2 मिनट्स 20 मिनट्स, आई एम नॉट श्योर, अपन देख लेंगे एक बार। 20,000 में दे देता हूँ अब इसको, 10,000 मिली सेकेंड, वन, एक मिनट यार, एक मिनट ना, थोड़ा भूल जाता हूँ। 1 मिनट इज 1,000 मिली सेकेंड, आई गेस 1 मिनट, क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 मिनट इज हाउ मेनी मिली सेकेंड्स, आई गेस 1,000, नहीं नहीं 60,000, ओके ओके ओके, मिली सेकेंड्स, हाँ 1 मिनट इज 60,000। और एनीवेज, मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ मैक्सिमम कितना टाइम आउट रहता है, तुम गूगल भी कर सकते हो। चलो फिलहाल मैं इसको 20,000 तक मैंने कर दिया है, वी कैन टेक एनी वैल्यूज ओवर हियर। चलो, नाउ दैट इज व्हाट जस्ट फॉर्म रिक्वेस्ट, हमने रिक्वेस्ट फॉर्म कर ली। ठीक है, आई जस्ट हैव फॉर्म द रिक्वेस्ट, मैंने रिक्वेस्ट फॉर्म कर ली है। नाउ वंस द रिक्वेस्ट हैज बीन फॉर्म, अब आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट को सेंड करना है, यू हैव टू सेंड द रिक्वेस्ट। ठीक है, तो आपको ये रिक्वेस्ट को सेंड करना है, तो सेंड करने के लिए एचटीटीपी क्लास यूज होती है। एचटीटीपी का आपने पहले से एक मेथड डिफाइन कर रखा है जिसका नाम है पोस्टल एचटीटीपी। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस पोस्टल एचटीटीपी यू वुड गोइंग टू सेंड दिस। ठीक है, तीन मेथड्स होती हैं इसमें, एचटीटीपी, सेंड और टू स्ट्रिंग। ठीक है, हम आएंगे दोनों पर आएंगे, टू स्ट्रिंग यूज करने वाला। नाउ आई वुड बी यूजिंग सेंड मेथड, सेंड मेथड में यूज कर रहा हूँ। अच्छा, आई गेस मैं कुछ बताना भूल गया, डॉट सेंड। अब देखो, जब आप सेंड मेथड यूज कर रहे हो तो यू कैन सी द रिटर्न टाइप ऑफ दिस, रिटर्न टाइप इटसेल्फ इज डिफाइंड सिस्टम डॉट एचटीटीपी रिस्पांस। इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो एचटीटीपी रिस्पांस होता है। हाँ, तो ये हमने डिस्कस किया है हालांकि, दिस वी हैव डिस्कस, फिर भी मैं एक चीज बता रहा था आप लोग। तो एचटीटीपी सेंड मेथड इज आई एम यूजिंग ओवर हियर। तो सेंड हमारी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट आई हैव फॉर्मुलेटेड विद दिस नेम। ठीक है, रिक्वेस्ट मैंने इस नाम से बना रखी है। हाँ, अब इसको आई हैव टू रिसीव दिस, आई वुड हैव टू रिसीव दिस इनसाइड अ वेरिएबल, दैट वेरिएबल should be of http response class, http response class. Define any name for this, postal response equals to this, right? And let me save up to this, इतना कोड पहले सेव कर देता हूँ। So there is an error, postal request dot set method, I'll have to check it out, क्या error है वैसा। No such method called as get, yeah, because get के साथ में हमें उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। सो इस वजह से हमको यहाँ पे एरर मिल रहा है। सो स्मॉल थिंग, ठीक है। नाउ सी, अभी तक क्या किया, अभी तक क्या किया, कुछ इनिशियल वेरिएबल्स डिफाइन किए, कलेक्शन डिफाइन किया, एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग वेरिएबल मैं डिफाइन कर रखा हूँ, इसका वैल्यू आपको बताऊंगा बाद में, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद में फिर मैंने मेथड बनानी स्टार्ट करी। सबसे पहले मैंने जो कलेक्शन बनाया था, जिसको यहाँ पर मैंने गेटर और सेटर लिया, उसको मैंने डिफाइन कर दिया कंप्लीटली बाय यूजिंग न्यू वेरिएबल। फिर पोस्टल पिन कोड की वैल्यू चेक करी कि यार सारा लॉजिक डिपेंड करता है इसके ऊपर, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उस पर, सो इट शुड नॉट बी आइडियली, इज नॉट, शुड नॉट बी नल एंड नॉट शुड बी एम्प्टी। उसके बेसिस पर फिर मैं आगे जाता हूँ, एंड पॉइंट यूआरएल का वैल्यू मैंने लिखा, उसमें अपेंड किया आखिरी में पोस्टल पिन कोड, बिकॉज ऐसा एग्जैक्ट
एपीआई को चाहिए ना, वी कैन नॉट मेक एनी स्मॉल चेंजेस इनटू दिस। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट को सेंड किया, तो उसका अपना एक मैकेनिज्म है, अपनी एक स्टेप है। स्टेप नंबर वन, आप एचटीटीपी क्लास का वेरिएबल बनाओ। स्टेप नंबर टू, आप रिक्वेस्ट फॉर्म करो। रिक्वेस्ट ये है, लेकिन रिक्वेस्ट फॉर्म करने के लिए आपको एचटीटीपी रिक्वेस्ट का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आप इसको सेंड करिए, और सेंड करने के बाद, सेंड करने के बाद में कलेक्ट एट रिस्पॉन्स ओवर हियर। ये इतना हो गया। नाउ दिस हैज बीन डन, दिस हैज बीन डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम वी वुड अज्यूम कि अभी हमको जो रिस्पांस मिलेगा, दैट वी वुड गोइंग टू कलेक्ट इट इनसाइड पोस्टल रिस्पांस जो यहाँ पर है, ठीक है। तो अब मैं दो चीजें करता हूँ, मतलब पार्सिंग करने से पहले मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया यहाँ पे, ये वाला पोस्टल रिस्पांस के नाम से डिफाइन हो गया। अच्छा, डायरेक्ट कलेक्ट कर, ओके चलेगा, ये भी ठीक है। अदरवाइज मैं इसको किसी और वेरिएबल में लेके फिर वहां लेने वाला था। नहीं, दिस कुड गिव मी एन एरर। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, नहीं नहीं, अलग नाम है यार, सही बात है। ओके ओके ओके, आई एम कीपिंग माई सेल्फ। हाँ ठीक है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सी, एक वेरिएबल डिफाइन किया मैंने जिसका नाम है पोस्टल रिस्पॉन्स जेसन, ठीक है। पोस्टल रिस्पॉन्स जेसन, व्हाट आई एम गोइंग टू डू वुड बी, मैं ये जो रिस्पॉन्स हमको रिसीव हुआ है इस वेरिएबल में, पोस्टल रिस्पॉन्स में, आई वुड बी कलेक्टिंग दैट, मैं उसको लेता हूँ और यहाँ स्टोर करता हूँ। तो इसको जब आप लेते हैं तो यू कैन यूज दिस मेथड गेट बॉडी, get body, ठीक है। there are some other methods as well, but you can use this get body, so it would going to give you the whole response in the form of string. Yes, I forgot to mention that. Get body, see, what is the response type, what is the return type, string. What is the return type, string, ठीक है। so get body, I would be using this method। तो ये मेथड क्या करता है ना, दिस वुड कन्वर्ट दिस होल रिस्पॉन्स जो यहाँ पर आया है जो जेसन में, उसको स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट एज एन अज्यूम करके इट वुड बी कन्वर्टिंग दैट इनटू टेक्स्ट फॉर्मेट। वैसे वो टेक्स्ट ही रहता है, जेसन इज ऑलवेज हैव टू बी अज्यूम एज अ टेक्स्ट। सो उसके बाद में भी हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर रखा है। ये एक एडिशनल स्टेप है, ये क्यों करते हैं यूजुअली मैं बताता हूँ आपको, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम यूजुअली ऐसे क्यों करते हैं, तो वो मैं आपको, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। लेट मी शो, ट्राई टू शो यू समथिंग। सिस्टम डॉट, ठीक है, वो एक मिनट हाँ, थोड़ा सा सोचने विचार करने का समय तो मुझको। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, चलिए। सो दैट वाज वन थिंग, ये यूजुअली सिस्टम डॉट डीबग करके आई कैन सी दैट अप टू दिस, यहाँ तक एक प्राइमरी चेक हो सकता है। सिस्टम डॉट डीबग, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, सी, व्हाट आई एम गोइंग टू डू वुड बी, मैं एक काम करता हूँ, अभी ये कोड में डिस्टरबेंस नहीं लाता, लेकिन lst branches dot size, ये this could give me an error, this could give me an error, space block, space।
Just give me 2 minutes. Just give me 2 minutes. I'm trying to do something to just to show you. Otherwise, system.debug तो मैंने ले रखी. ठीक है, ठीक है. All right. Let me try to show you something. 440024. Let's try to search call out unexpected security. Remote site setting. Yes, 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 yes. ठीक है. चलो, एक स्टेप नंबर 1 थी जो मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लिटिल लेटर, वो पहले कर लेते हैं. सी वेन एवर यू परफॉर्म एनी इंटीग्रेशन, ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात. दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं. एक होता है इनबाउंड, दूसरा होता है आउटबाउंड. ठीक है. एक होता है इनबाउंड, दूसरा होता है आउटबाउंड. फिलहाल व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज समथिंग कॉल्ड एज इनबाउंड. इनबाउंड कैसे? यू आर रिसीविंग, अच्छा, यू आर रिसीविंग डेटा फ्रॉम एन एक्सटर्नल वेबसाइट. आप जो डेटा रिसीव कर रहे हो वो किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन से. एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, दिस इज आर लाइक Salesforce. ध्यान से सुनिए मेरी बात. Salesforce एंड दिस इज योर पोस्टल पिन कोड एपीआई एप्लीकेशन, राइट. ये आपका पोस्टल पिन कोड वाला एप्लीकेशन है. नाउ डेटा, हम डेटा की तरफ देखो, पैरामीटर्स मत देखो. आप ये देखो कि डेटा रिकॉर्ड्स कहाँ से मिल रहा है. तो वी आर रिसीविंग दिस फ्रॉम पोस्टल पिन कोड. अब हाँ, वो एक अलग बात है कि यू वुड बी ट्रांसफरिंग वन, कुछ टोकन्स, आप कुछ रिक्वेस्ट आप इसको ट्रांसफर कर रहे हो. वो रिक्वेस्ट वही आपके एंड पॉइंट यूआरएल और सेट मेथड वगैरह जो आपने फॉर्म किया अभी, इसमें आपने पिन कोड दिया और आपने मेथड डिफाइन किया ना, दैट दैट रिक्वेस्ट यू आर सेंडिंग. तो यहाँ कोई इंटीग्रेशन इनबाउंड है या आउटबाउंड है, वो रिक्वेस्ट के आधार पे नहीं, रिस्पॉन्स के आधार पे. रिस्पॉन्स के आधार पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स. if you are receiving response if you are receiving response if you are receiving response, it's an inbound. You are sending response and outbound. वो भी आएगा अपना वेब सर्विस, नेक्स्ट टॉपिक है. तो इन योर केस आपको मैंने दोनों पढ़ाए हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड, ऐसा आप कह सकते हो. तो अभी जो हम कर रहे हैं दैट्स एन इनबाउंड. तो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, if Salesforce is receiving the response, it's called to be an inbound. If Salesforce is sending the response, कोई आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, बोल रहा है भाई अकाउंट का डेटा दे दो यार थोड़ा सा, कॉन्टेक्ट का डेटा, कोई भी, एंड Salesforce इज सेंडिंग द रिस्पॉन्स, तो फिर वो आउटबाउंड हुआ. अभी फिलहाल जो हम कर रहे हैं इनबाउंड कर रहे हैं. अभी जो हम कर रहे हैं इनबाउंड कर रहे हैं. ठीक है. अब इसमें एक क्वेश्चन आता है ऑथेंटिकेशन का. ये यूजुअली अपना इंटरव्यूज में भी पूछते हैं कि इनबाउंड में इनबाउंड में इनबाउंड का मतलब जहां आप रिस्पॉन्स रिसीव कर रहे हैं, जो अभी डायग्राम आपके सामने. इनबाउंड में ऑथेंटिकेशन कैसे किया जाए? हाउ वुड यू ऑथेंटिकेट कि ये जो पोस्टल पिन कोड है ये सेल्सफोर्स के साथ कनेक्ट हो सकती है? तो इनबाउंड में ऑथेंटिकेशन. आउटबाउंड में कैसा होता है मैं बताऊंगा आपको. ओऑथ ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करके एक चीज हम पढ़ने वाले, डोंट वरी, पढ़ेंगे. जब उसकी बारी आएगी वो भी डिस्कस करेंगे, छूटना कुछ भी नहीं. क्वेश्चन है इनबाउंड में how would you follow that steps of authentication, या how would you authenticate. ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? तो इनबाउंड में ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है ना, वो एक्चुअली इनबाउंड में जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है उसके लिए ही रिमोट साइट सेटिंग यूज होती है. तो आपने करना क्या है, एज एन स्टेप नंबर 1, कहाँ लिखा है मैंने, या नहीं आगे लिखा है कैस. एज एन स्टेप नंबर 1, you first of all would have to create something called as remote site setting. सबसे पहला जो होता है वो होता है रिमोट साइट सेटिंग. पहले अब यहाँ जैसे लिखा है कि सारी इंफॉर्मेशन निकाल लो वगैरह वगैरह, वो ठीक है, दैट्स जस्ट डॉक्यूमेंटेड स्टेप. सबसे पहली स्टेप होती है कि सेल्सफोर्स रिमोट साइट सेटिंग में आपको वो यूआरएल ऐड करना पड़ता है. ये वाली वेबसाइट, ये वाला एप्लीकेशन का यूआरएल, ये वाले एप्लीकेशन का यूआरएल, एंड पॉइंट यूआरएल आपको रिमोट साइट सेटिंग में ऐड करना पड़ता है. तभी तभी आप तभी ये पर्टिकुलर वेबसाइट से कुछ रिसीव कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते. और ये सेम एरर अभी हमको मिला है. ठीक है. देखो, मेरा इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली सारी क्लासेस वगैरह काम सही कर रही है, लेकिन एज यू कैन सी सिस्टम डॉट कॉल आउट एक्सेप्शन, ये जो एरर है ये कॉल आउट के एक्सेप्शन है. कॉल आउट मतलब जब आप बाहर से किसी को बुला रहे हैं, वही आउटबाउंड. अनऑथराइज्ड एंड पॉइंट, एंड पॉइंट अथराइज नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज आपने रिमोट साइट सेटिंग में एंड पॉइंट यूआरएल जो है ना वो ऐड नहीं किया है.
कितना क्लियर है ये एरर, राइट? तो ठीक है, तो ये स्टेप हम कर लेते हैं पहले, लेट्स डू दैट स्टेप। तो आई वुड गो टू फॉर दिस रिमोट साइट सेटिंग। रिमोट साइट सेटिंग कहाँ पर होती है? मैनेज एप्स, सिक्योरिटी कंट्रोल्स। लेट मी ट्राई टू फाइंड इट आउट ओवर हियर, वरना ऊपर से मैं क्विक फाइंड से सर्च कर लूंगा। ठीक है, क्या हो गया इसको? सिक्योरिटी ऐप, यहाँ रिमोट साइट सेटिंग, ठीक है। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू दिस दिस टैब सिक्योरिटी कंट्रोल्स। वहां जाने के बाद में यू हैव दिस ऑप्शन रिमोट साइट सेटिंग्स, राइट? और फिर नहीं मिल रहा है तो ऊपर क्विक फाइंड में सर्च कर लेना। सो यू हैव टू क्रिएट समथिंग कॉल्ड एज अ रिमोट साइट सेटिंग। सबसे पहले आपको सेल्सफोर्स के अंदर वो एंड पॉइंट यूआरएल जो है ना, दैट यू हैव टू एंटर। तो पोस्टल पिन कोड एपीआई के नाम से मैं इसको जो है आई वुड डिफाइन, ये इसका नाम देता हूँ रिमोट साइट सेटिंग का। और ये जो ये इसका यूआरएल है, यू नो दैट यूआरएल आई वुड बी स्टोरिंग अप टू ओवर हियर। आपको यहाँ तक ही स्टोर करना है, लेकिन वो यहीं तक लेगा। सिर्फ डोमेन नेम तक लेता है, सिर्फ डोमेन नेम तक लेता है, .com, .in, ठीक है। मैं यहाँ तक ट्राई करता हूँ, बट मुझे पक्का पता है कि ये यहाँ तक ही लेगा, .in तक ही लेगा। ठीक है, सो इवन दो इफ आई वुड ट्राई टू सेव इट, हाँ देखिए ऐसे ही होता है। तो ये डोमेन नेम तक ही लेता है, बाकी का पैरामीटर एंड पॉइंट यूआरएल के थ्रू हम सेंड करते हैं, ठीक है, चलता है। हाँ, तो ये मैंने क्या किया, दिस आई हैव ऑथेंटिकेटेड। अब मैंने सेल्सफोर्स के अंदर एक रजिस्टर्ड एंट्री क्रिएट कर दी है। And with remote site setting, what you just have did is like, you have registered an external application. Now this external application with this domain, with this endpoint URL, with this name is authorized to get connected with your Salesforce organization. Varna Salesforce ने रोक दिया था हमको, right? So this is how you would perform the authorization in case of inbound integration. Outbound में दूसरा तरीका है, outbound में दूसरा तरीका है, we're going to discuss in that. तो ये होता है रिमोट साइट सेटिंग। नाउ लेट मी go back to this page and I'll search it. मुझे रिस्पॉन्स आता है क्या? that I'm checking it out. अच्छा, रिक्वेस्ट सेंड किया, अच्छा सिस्टम डॉट डीबग देख लेता हूँ। पार्सिंग मैंने नहीं किया है अभी तक, लेट मी सी। पार्स करने के बाद उसमें यहाँ तो आ रहा है। सी, ये है वो रिस्पॉन्स जो हमको दिखा। आई शैल कॉपी एंड पेस्ट इट आउट समवेयर। ये है वो रिस्पॉन्स जो आपको मिला है, ठीक है, जेसन रिस्पॉन्स, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्स है ये। यू कैन सी दिस, राइट? बिल्कुल वैसा ही है ये, जैसा हमने इसको एक्सपेक्ट किया था, है ना? लाइकवाइज, राइट? लाइकवाइज दिस रिस्पॉन्स इज, तो रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ, अब ये यही देखने के लिए, इंटीग्रेशन में यही देखने के लिए कि रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं, यानी एपीआई प्रॉपरली हिट हुई है या नहीं, तो हम विजुअली यूजुअली जो हम डेवलपर्स होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि वी क्रिएट अ टेम्पररी स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। हाँ, वी क्रिएट अ टेम्पररी स्ट्रिंग वेरिएबल, वहां पे हम रिस्पॉन्स को स्टोर कर देते हैं, ठीक है। वहां पे हम रिस्पॉन्स को स्टोर कर देते हैं, और या तो सिस्टम डॉट डीबग की मदद से, और या फिर जो पेज में मैंने चेंजेस किया था जो कि ऑथेंटिकेट नहीं हो पाए, उसकी मदद से वी सी टू दिस, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। रिस्पॉन्स आ रहा है मतलब एपीआई आपकी हिट हो रही है प्रॉपर तरीके से, आपकी जो वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है वो हिट हो रहा है, एंड इट इज सेंडिंग बैक द रिस्पॉन्स। चलो, ये कंफर्म हो गया तो फिर आप आगे बढ़ो, अब बिंदास कोड करो। अब जो कुछ भी करना है तुमको, ठीक है, वो तुम बिंदास करो अभी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू वुड बी, अभी मैं जो भी चेंजेस किए थे मैंने, दैट आई वुड रिवर्ट इट बैक, उसको वापस रिवर्ट कर देता हूँ।
आई वुड रिवर्ट द एंटायर थिंग एज इट इज, ये सारा मैंने एज इट इज कर लिया। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू द कोड। रिस्पॉन्स आ गया मतलब आप श्योर हो गए। सिर्फ ये देखने के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए वी यूजुअली परफॉर्म दिस, कि सारा पूरा कोड करने के बाद पता चल रहा है कि एपीआई हिट ही नहीं हो रही है, तो उससे अच्छा ये होता है कि आप एक वेरिएबल डिफाइन करके पहले चेक कर लिया करो। ठीक है, नाउ लेट्स गो फर्दर। के के प्रोसेस आउट। ठीक है, लेट्स गो फर्दर विद दिस, अब आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज लाइक रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, वी आर श्योर अबाउट दिस। अब जब रिस्पॉन्स आ रहा है आपको, बिकॉज यू कैन सी दैट रिस्पॉन्स वाज इन द फॉर्म ऑफ जेसन, तो हमें उसको पार्सिंग करनी है, और पार्स करने के बाद में विल गोइंग टू डिस्प्ले दैट इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो पार्स करने के लिए आई वुड बी यूजिंग जो हमने इसके पहले सीखा है, बस वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, जेसन पार्सर क्लास। सो सिस्टम डॉट जेसन पार्सर, ठीक है, सिस्टम डॉट जेसन पार्सर, लेट्स से पी पार्सर इक्वल्स टू सिस्टम डॉट जेसन डॉट create parser, ठीक है, create parser। now here you actually would require to supply that string, आपको जेसन की स्ट्रिंग जो है वो देनी पड़ती है, जिसको आपने जैसे वो आपने पास करना है। तो हमने वो स्ट्रिंग जो थी, वो ये स्ट्रिंग एज अ गेट बॉडी हमने पहले ले रखी है, एंड दैट वी हैव स्टोर्ड इट इनसाइड दिस वेरिएबल नेम, तो मैं इस वेरिएबल नेम को डायरेक्टली भी दे सकता हूँ। दैट इज अगेन एडवांटेज ऑफ दिस, आप एक एडवांटेज और है आपके पास में, अगर आप उसको पहले गेट बॉडी करके, इफ यू, वरना फिर आप पोस्टल रिस्पॉन्स डॉट गेट बॉडी ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, इट्स वन एंड सेम थिंग, इट्स अप टू यू व्हाट यू हैव टू डू। बस यहाँ पे जेसन स्ट्रिंग आनी चाहिए जो कि वी हैव गिवन, राइट राइट। उसके बाद में जैसा हमने सीखा है ना, आई एम जस्ट रिपीटिंग द सेम प्रोसेस, वाइल पी पार्सर डॉट नेक्स्ट टोकन इज नॉट इक्वल टू नल, हाँ, शुरुआत से लेके आखिरी तक पार्सिंग करना। पी पार्सर डॉट नेक्स्ट टोकन, इफ इट इज नॉट इक्वल टू नल, इट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक हम इसको पार्स करेंगे, विल गोइंग टू पार्स इट आउट। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा आता है कि एक चीज, इफ यू हैव सीन अबाउट द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में ये कुछ मैसेजेस हैं जो पहले आ रहे हैं ना, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर हियर हियर। तो इस रिस्पॉन्स को देखते हुए, इट्स रिस्पॉन्स को देखते हुए, अच्छा, पी पार्सर डॉट गेट बॉडी देने से क्या होता है ना, इट वुड स्टार्ट फ्रॉम द टेक्सचुअल डेटा। जैसे आपने यहाँ पे ये देखो, ये जो आपने पोस्टल रिस्पॉन्स डॉट गेट बॉडी फंक्शन यूज किया है ना, तो गेट बॉडी फंक्शन वुड स्टार्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी इज नॉट दिस, इवन इट इज नॉट दिस, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम हियर, बॉडी ऑफ द मैसेज। दिस इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग गेट बॉडी। अगर आप ये नहीं देते, आप डायरेक्टली रखते, तो आपको पार्सिंग यहाँ से शुरू करनी पड़ती थी। ठीक है, बस इतना फर्क आता है, तो दैट इज दैट, वो आपके ऊपर है। गेट बॉडी लेने से क्या होता है कि मैं सीधा मैसेज की बॉडी पे आ जाता हूँ, तो दैट्स व्हाट अ बेनिफिट। तो अब मेरा पार्सिंग जो मैं बनाऊंगा वो यहाँ से बनाऊंगा, ना कि यहाँ से। अगर मैं गेट बॉडी नहीं लेता तो आई हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ अरे से, फिर स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट से, और उसके बाद फिर ऐसा। तो वो भी ठीक है यार, वो डिपेंड करता है तुम किस में कंफर्टेबल हो। हम लोग यूजुअली मैसेज की बॉडी पे ध्यान देते हैं, तो दैट्स व्हाई वी गेट बॉडी फंक्शन लेके हमारा जो पार्सिंग है वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। चलिए, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग इन योर रिस्पॉन्स गेट बॉडी के बाद, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग इन योर रिस्पॉन्स, दैट्स अ फील्ड नेम, ये दैट्स अ फील्ड नेम। एंड व्हाट इज द फील्ड नेम, मैसेज। तो जैसा बिल्कुल इसके पहले किया है ना, आई एम जस्ट रिपीटिंग द सेम प्रोसेस, बिल्कुल वही कर रहा हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स के आधार। if that p parser, if that p parser dot get current token, करंट टोकन की वैल्यू लीजिए, which is equals to जेसन टोकन डॉट फील्ड नेम। जो पहला है वो फील्ड नेम होना चाहिए, और अगर इफ इट्स अ फील्ड नेम, अगर वो फील्ड नेम है, तो पी पार्सर डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए एग्जैक्ट, आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट आउट, ये इसमें एक स्पेलिंग या अपर केस लोअर केस भी हुआ तो ये है।
याद रखिए, इफ इट इज लाइक दिस, अगर वो ऐसा है तो, अगर वो ऐसा है तो पी पार्सर डॉट, सॉरी, पी पार्सर डॉट नेक्स्ट टोकन, आगे बढ़ जाइए। ये हमने इसके पहले इंप्लीमेंट किया है, तो आई गेस आपको, मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बिकॉज इसके लिए मैंने सेपरेट प्रोग्राम्स पहले ही ले रखे हैं। पी पार्सर डॉट नेक्स्ट टोकन, आप नेक्स्ट टोकन पे जाइए, एंड देन पी पार्सर डॉट, नहीं पी पार्सर, सिस्टम डॉट डीबग कर लेंगे, सिस्टम डॉट डीबग जेसन मैसेज इक्वल्स टू प्लस प्लस पी पार्सर डॉट गेट टेक्स्ट, पी पार्सर डॉट गेट टेक्स्ट, वो प्रिंट हो जाएगा, ये वाला नंबर ऑफ इनपुट फॉर्म्स। फिर स्टेटस, इसको भी ऐसे ही करना है, सो आई वुड टेक दिस, पेस्ट इट आउट, इसको पेस्ट कर लेता हूँ। नाउ इफ ई पार्सर डॉट गेट करंट टोकन इज जेसन फील्ड नेम, and if that field name value is status, so I'll just copy and paste it out। चलो ये भी हो गया, ठीक है, लेट मी सेव अप टू दिस। तो उसका भी मैसेज ले लो, उसका भी मैसेज ले लो, जेसन मैसेज नहीं, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे, स्टेटस, जेसन रिस्पॉन्स स्टेटस इक्वल्स टू, ऐसा कुछ, ये भी ठीक है। I am getting it। Current token is a field name and we should get text equals to search. What is the error? Comparison argument, string system JSON token. Comparison argument must be compatible. String system.json token. Tparser.get current token name. कहाँ पे गड़बड़ हो गई, करंट टोकन नेम नहीं चाहिए था, गेट करंट टोकन चाहिए था। हाँ, गेट करंट टोकन ये चाहिए था। यस 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 यस, दैट्स राइट, ठीक है, इसलिए एरर दे रहा था वो। हाँ, चलो, तो दो चीजें हमने पास कर ली, अब इसके बाद में नाउ वी हैव टू गो विथ अगली चीज, क्या है रिस्पांस में आपके, अच्छा ये ऐसा है, सॉरी, पोस्ट ऑफिस विच इज अ फील्ड नेम, पोस्ट ऑफिस एक फील्ड नेम है, उसके बाद यहां से शुरू होता है तुम्हारा रिस्पॉन्स, यहां से शुरू होता है तुम्हारा रिस्पॉन्स, लाइक दिस, ठीक है। तो इसके बाद एक फील्ड नेम है बस, पोस्ट ऑफिस, उसके बाद आपका स्टार्ट ऑफ अरे, स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पूरा रिस्पॉन्स एंड लाइक दिस। तो इसको भी मुझे पास करना है, बिकॉज ये भी आ रहा है, जो भी आ रहा है रिस्पॉन्स में सारी चीजें पास करनी है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। सो आई कैन रिपीट द सेम कोड ओवर हियर, if p parser dot get current token, ठीक है, इफ इट्स अ फील्ड नेम एंड इफ दैट फील्ड नेम इक्वल्स टू आपका पोस्ट ऑफिस, दैट फील्ड नेम इज पोस्ट ऑफिस। तो अगर इफ इट इज लाइक दिस, देन पी पार्सर डॉट गेट नेक्स्ट टोकन, एंड यहाँ से सिस्टम डॉट डीबग अब हटा देता हूँ, यहाँ पे पूरा कोड मेरा इंसर्ट होता है, ठीक है। अभी इतना देखो, आप पहले पहले इतना समझो, पहले इतना समझो, सी, बेस्ड ऑन दिस रिस्पॉन्स, दो चीजें पहले थी, स्टार्ट ऑफ अरे, स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट बिकॉज जब हमने रिस्पॉन्स स्टोर किया, सो हमने पोस्टल रिस्पॉन्स डॉट गेट बॉडी दे दिया। तो गेट बॉडी से मतलब होता है कि आपका रिस्पॉन्स यहां से स्टोर हुआ है और ये दो इग्नोर हो गई है, मतलब जहां से आपका बॉडी शुरू होती है, रिस्पॉन्स की बॉडी, तो दैट बॉडी स्टेट्स मतलब जहां से टेक्स्ट शुरू होता है, तो ये मैसेज से शुरू होता है, तो यहाँ से वी वुड अज्यूम कि हमारा रिस्पॉन्स यहाँ से आया है। अब इसमें स्टार्टिंग में तीन एंटिटीज थी, तीन में से दो जो है वो कुछ मैसेज दे रही हैं, और ये जो है दिस वुड जस्ट इंडिकेट कि ये एक फील्ड नेम है, दिस इज जस्ट अ फील्ड नेम, ठीक है। सो मैंने उसके हिसाब से फिर कोड करना शुरू किया,
मैंने देखा कि पहला फील्ड नेम है और मैसेज है, तो फिर आपने प्रिंट कर दिया, फिर फील्ड नेम है और स्टेटस है, उसको भी आपने प्रिंट कर दिया। फील्ड नेम है और पोस्ट ऑफिस है, फील्ड नेम है और अगर पोस्ट ऑफिस है। अब इसके बाद नेक्स्ट टोकन क्या, नेक्स्ट टोकन मतलब हम आगे बढ़ जाते हैं और हम यहाँ से अभी इसको शुरू करने वाले हैं। ठीक है, उसको हम यहाँ से शुरू करने हैं। नेक्स्ट टोकन मतलब पहले आप यहाँ थे और नेक्स्ट टोकन मतलब अब यहाँ पर हो। तो यहाँ से फिर जो है ना वो हमारा रिस्पॉन्स है, यहाँ से हमारा रिस्पॉन्स है। अब इस रिस्पॉन्स को वी गोइंग टू पास इट। ठीक है, वी गोइंग टू पास। अच्छा, रिस्पॉन्स क्या आपके पास एक ही है? नहीं। फॉर अ सिंगल पिन कोड इट माइट गिव मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, राइट, मल्टीपल वैल्यूज ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखेंगे, उसके हिसाब उसी लिए यहाँ पर मैं एक वाइल लूप लगाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक वाइल लूप लगाने वाला हूँ। तो वाइल लूप मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, सो वो आपको समझ में आएगा, बिकॉज कि आपके पास में एक ही पिन कोड के लिए मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो, बट बिफोर दैट इफ, ध्यान से देखिए, इफ इफ पी पार्सर, इफ पी पार्सर डॉट गेट करंट टोकन, गेट करंट टोकन, p parser dot get current token. ठीक है, if it's equals to json token dot start of an array, if it's equals to start of an array, अरे यार क्या हुआ, if it's equals to start of an array, देखो, आई मीन यहाँ तक आप पहुंच गए, फिर आपने दिया p parser dot next token, अब आप यहाँ पर हो। नाउ यू ऑल्सो हैव टू चेक फॉर दिस सिंबल, राइट। तो ये सिंबल क्या है? दिस इज स्टार्ट ऑफ एरे। तो मैंने यहाँ पे बोला कि फी पार्सर डॉट गेट करंट टोकन, आई मीन जहां पर अभी तुम खड़े हो वहां की करंट वैल्यू ले लो टोकन की। और अगर इफ यू सीम्स लाइक जेसन टोकन डॉट स्टार्ट ऑफ अरे, अगर वो स्टार्ट ऑफ अरे है तो आगे बढ़ो, वरना नहीं। तो वी आर पासिंग दिस अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स, जैसा रिस्पॉन्स है वैसा, बिल्कुल जैसा रिस्पॉन्स है वैसा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पहुंचना है, इसके बाद ये तो हो गया, अब मुझे यहाँ पहुंचना है। तो यहाँ के लिए फिर मैं दूंगा, यहाँ के लिए सबसे पहले तो पी पार्सर डॉट टोकन, पी पार्सर डॉट गेट नेक्स्ट टोकन। तो इसके बाद में जैसे स्टार्ट ऑफ अरे हो गया, तो फिर अंदर जाने के बाद नेक्स्ट टोकन, नेक्स्ट टोकन मतलब यू आर नाउ ओवर हियर, यू आर नाउ ओवर हियर। ठीक है, अब यहाँ से बिकॉज ये कैसा है, दिस इज एक्चुअली दिस इज एक्चुअली स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, पहले स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है और मोर ओवर ये एक रिस्पॉन्स है, फिर ये दूसरा रिस्पॉन्स है, तो इसको आपने फिर वाइल लूप के अंदर डालना है। सो स्टार्ट ऑफ अरे, उसके बाद में पी पार्सर डॉट नेक्स्ट टोकन, यहाँ पर फिर मैं आई वुड इंसर्ट अ वाइल, वाइल पी पार्सर, वाइल पी पार्सर डॉट गेट parent token, if it's equals to json token dot start of object, if it's in start of object, तो स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मिलता है। तो स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे ये भी एक स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये इसको पास करेगा, उसके बाद में ये भी स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको पास करेगा, इसके बाद में एक और होता है तब भी। तो जब तक इसको रिकॉर्ड्स मिलते जा रहे हैं, इन शॉर्ट, ठीक है, जब तक इसको रिकॉर्ड्स मिलते जा रहे हैं तब तक ये पार्स करता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आफ्टर दैट ये सारी चीजें, दिस वी ऑलरेडी हैव स्टोर्ड, फॉर दिस वी हैव डिफाइंड अ क्लास, और उस क्लास का मैंने पहले से एक लिस्ट कलेक्शन भी बना के रखा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसके बाद ये सिंपल है। इसके बाद में वी ऑलरेडी हैव अ क्लास फॉर दिस, सो पोस्टल ऑफिस ब्रांच, मतलब मैं एक्चुअली क्या करने वाला हूँ पता है क्या, यू यू हैव अंडरस्टूड दैट। हमने हमने एक डीसीरियलाइज मेथड यूज की थी, इफ यू वुड रिमेम्बर, हमने एक डीसीरियलाइज मेथड यूज करी थी। बस वैसा ही एक और मेथड होता है, रीड वैल्यू एस। तो मैं क्या करने वाला हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं समझाता हूँ, पहले मुझे लिखने दो। पी पार्सर, ठीक है, पी पार्सर डॉट रीड वैल्यू एस, रीड वैल्यू एस, इफ यू वुड सी टू दिस रीड वैल्यू एस, तो ये भी वही है, सिस्टम डॉट टाइप एपेक्स टाइप, लाइक योर डीसीरियलाइज मेथड। लेकिन डीसीरियलाइज मेथड वी वुड यूज विद सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट का डेटा आता है जेसन फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे अगर
अगर ये जो डेटा है अभी जो हमारी ये जो क्लास है पोस्ट ऑफिस ब्रांच, ये एक्चुअली सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लास जरूर है। तो इसके लिए डीसीरियलाइज मेथड यूज नहीं करनी है आपने। आपने यूज करनी रीड वैल्यू एज, विच इज एक्चुअली वन एंड सेम थिंग। वन एंड सेम थिंग। डीसीरियलाइज पर्टिकुलरली हम यूज करते हैं आपके सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट के लिए। एंड व्हेन यू हैव अ कस्टम क्लास डेटा, तो आप यूज करते हो ये। और दोनों का अगर आप देखो डेटा टाइप सेम है, एपेक्स टाइप वो पूछता है आपसे, राइट। सो आई वुड यूज पी पार्सर डॉट रीड वैल्यू एज, p parser dot read value as. Now inside in this, what is my apex type? जैसे अकाउंट टाइप लिखा, आप अकाउंट डॉट क्लास लिखा करते थे आप डीसीरियलाइज मेथड में, है ना। बिल्कुल वही पैटर्न है। एक्चुअली रीड वैल्यू एज और डीसीरियलाइज दोनों सेम है। बस एक ही फर्क है कि रीड वैल्यू एज आप किसी भी कस्टम क्लास के लिए यूज करनी है, और डीसीरियलाइज मेथड आपने यूज करनी है पर्टिकुलरली सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है। चलिए। सो मेरा डेटा टाइप क्या है? माय डेटा टाइप इज ये क्लास। जैसे अकाउंट अगर ये होता तो मैं लिखता अकाउंट डॉट क्लास लिखता था, अपॉर्चुनिटी डॉट क्लास लिखता था, है ना, डिजिटलाइज मेथड। इन द सेम वे यहां पर भी मैं वही लिख रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस डॉट क्लास, पोस्ट ऑफिस डॉट क्लास। अब इसका जो रिटर्न टाइप, दिस वुड रिटर्न मी एस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, जैसा बिल्कुल आपने पढ़ा है बिल्कुल वैसा ही है, कुछ फर्क नहीं है। लेकिन आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, वो एस ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। टाइप कास्ट करनी पड़ेगी किसमें? जैसे अकाउंट में करना था तो आपने अकाउंट देते थे। अब ये दिस वुड गिव यू वन रिकॉर्ड, एक एक रिकॉर्ड देगा एट अ टाइम, एक एक रिकॉर्ड। तो उसको आपको स्टोर करना है एक वेरिएबल में, दिस यू हैव टू स्टोर। तो आप कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन कर लो उस क्लास का, PRANCH, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे सेमीकोलन चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, यू कैन कंपेयर दिस स्टेटमेंट विद द डीसीरियलाइज मेथड, बिल्कुल एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा है। बस डीसीरियलाइज मेथड वी यूज इट फॉर द सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट, और रीड वैल्यू एज इज यूज फॉर द कस्टम, इट इज यूज फॉर द कस्टम क्लासेस। बिल्कुल वही पैटर्न है, बिल्कुल वही पैटर्न है। ठीक है। डॉट डीसीरियलाइज लिखते हैं जेसन सिस्टम दैट मेथड डॉट जेसन डॉट डीसीरियलाइज लिखने के बजाय ये रीड वैल्यू एज, बाद में आपने क्लास मेंशन किया, उसको टाइप कास्टिंग किया, और टाइप कास्टिंग करने के बाद उसको उस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब ये वेरिएबल हमारे पास में आ गया है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू आफ्टर दिस, आफ्टर दिस हमने एक लिस्ट कलेक्शन बनाया था विद दिस नेम LST ब्रांच, वहां पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। LST branches डॉट ऐड, मतलब एक एक रिकॉर्ड, देखो एक एक रिकॉर्ड में ऐड कर रहा हूँ और कुछ नहीं, वाइल लूप के अंदर चल रहा है ये पूरा, एक एक रिकॉर्ड में ऐड कर रहा हूँ। सो आई वुड बी एडिंग दैट ब्रांच, पहला रिकॉर्ड जो पार्स हुआ, पार्स होने के बाद यहाँ पे ऐड हो गया, एंड उसके बाद में पी पार्सर डॉट नेक्स्ट हो गया। फिर आगे बढ़ जाना चाहिए इसमें, पी पार्सर डॉट नेक्स्ट। चलो, आई होप दिस शुड वर्क। काम तो करना चाहिए इसने। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर से पूरा। पोस्टल पिन कोड की वैल्यू लिया, उसके बाद में कलेक्शन में इसको डिफाइन किया, एंड पॉइंट URL HTTP, पोस्टल HTTP से सेंड किया, पोस्टल सेंड पॉइंट, एंड पॉइंट URL की वैल्यू यहाँ से लिया। टाइम आउट, ये तो ठीक है, ये तो रिस्पॉन्स दे भी रहा है हमको। मेन यहाँ से था सिस्टम डॉट क्रिएट पार्सल, पी पार्सल लिया, नेक्स्ट टोकन इज नॉट इक्वल्स टू नल, ये क्लोज में बराबर, पी पार्सल डॉट फील्ड नेम मैसेज है तो उसको प्रिंट किए, स्टेटस है उसको भी प्रिंट किया। जहां से पोस्ट ऑफिस आ गया, नेक्स्ट टोकन पे गए, वहां से स्टार्ट ऑफ एन अरे, ठीक है, स्टार्ट एन अरे जब तक मिलेगा तब तक पास करेगा नेक्स्ट टोकन। और इसके अंदर फिर जेसन स्टार्ट, जेसन टोकन डॉट स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, डीसीरियलाइज किया, ऐड किया, ठीक है, कोड तो ठीक है। चलो, टाइम इज टू टेस्ट इट, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। सो ये मैं, अगर टेस्टिंग सही होती है तो उसके बाद समझाता हूँ। सो आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल वुड रिफ्रेश दिस, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। Okay, so we have this Visual Force page. We also have this class is ready. हमारी controller class भी ready हो चुकी है। See, you have coded over there. यहाँ पे वो आपको automatically दिख जाता है। ठीक है। Now I would going to check it out. मैंने postal pin code enter किया इंटरफेस पे, और फिर मैंने उसको सर्च किया। गुड, वेरी गुड। So this is what we get the response, और ये response Salesforce से नहीं आया,
this has been generated from an external system, right? You can ask to enter me anything over here. See, doesn't have any records. I'm just randomly entering. I'm not sure whether this is having anything or not. So, right? So this is like, something called as inbound integration we just have achieved. All right, give me some more time. मैं आपको ये भी explain कर देता हूँ. Let me explain the Visual Force code as well. चलो. So देखो, controller, then section header, as you can see, is title, is postal, so that you would going to see. This is section header, ठीक है. और उसके बाद में सब टाइटल, टाइटल एंड सब टाइटल. टाइटल इज ऑलवेज स्मॉल, सब टाइटल इज ऑलवेज बिग. पीपल यूजुअली थिंक कि सब टाइटल छोटा होता है, टाइटल बड़ा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. टाइटल छोटा होता है, सब टाइटल बड़ा होता है. सो दैट इज ओवर हियर, ठीक है. आपको आइकन चेंज करना है, किसी ऑब्जेक्ट का देना है, तो हियर यू कैन ऑल्सो डू दैट. वो मैंने एक्सप्लेन किया था. उसके बाद में मैंने फिर एक नया फॉर्म ओपन किया. उस फॉर्म के अंदर में फिर एक पेज ब्लॉक डाला मैंने, जिसका ना टाइटल रखा मैंने पोस्टल ब्रांचेस ब्लॉक, दैट यू कैन सी इट ओवर हियर. उसके बाद में आई हैव डिजाइन द इंटरफेसेस. मैंने इंटरफेस बनाए, तो मैंने पहले, उसके बाद में फिर मैंने एक पेज ब्लॉक सेक्शन लिया. पेज ब्लॉक के अंदर पेज ब्लॉक सेक्शन विच इज अ चाइल्ड कंपोनेंट. पेज ब्लॉक सेक्शन is always a child component of the page block section, page block table, ये सारे child component होते हैं पेज ब्लॉक्स के. दैट एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन इन डिटेल ओवर देयर. अभी बस मैं इतना कोड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है. टाइटल वगैरह एज यू कैन सी सब सब नजर आ रहा है आपको. सर्च ब्रांचेस यहाँ लिखा है, सर्च ब्रांचेस यहाँ लिखा हुआ है ना, ऑल दैट. दो कॉलम्स है इसमें. यू कैन मेक इट सिंगल कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम, वट एवर. एंड देन कोलैप्सिबल इक्वल्स टू इज समथिंग लाइक दिस. ये इसको बोलते हैं कोलैप्सिबल एलिमेंट. तो इट्स अप टू यू वेदर यू वांटेड दिस और नॉट. उसके बाद में फिर मैंने इनपुट टेक्स्ट दिया. इनपुट टेक्स्ट में मैंने बोला कि एंटर द पोस्टल पिन कोड. यहाँ पे एक टेक्स्ट है, वट एवर द वैल्यू दैट यूजर इज एंटरिंग. एस टी प्लेस होल्डर मतलब ये होता है, ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे फेंटेड, राइट. दैट इज व्हाट इज अ प्लेस होल्डर. एंटर पिन कोड या वेल जो कुछ भी आपको देना है. इसके बाद जो कुछ भी यूजर यहाँ एंटर कर रहा है, दैट इज गेटिंग स्टोर्ड डायनामिकली. डायनामिकली मतलब एक वेरिएबल. तो उसके लिए आपको डायनामिक असाइनमेंट्स आर ऑलवेज रिटन लाइक दिस. जो हमारा मर्ज फील्ड का जो फॉर्मेट होता था, जो हमने ईमेल टेम्पलेट में यूज किया था, दैट वी हैव टू यूज इट ओवर हियर, ठीक है. सेम पैटर्न यू हैव टू फॉलो इन ऑरा. एलडब्ल्यूसी इज वेरी फ्लेक्सिबल. एलडब्ल्यूसी में आप डायरेक्ट असाइन करते हो. एलडब्ल्यूसी में कोई वैर वगैरह नहीं होता है. यू कैन डायरेक्टली असाइन इट. हाँ, अगर कहीं डिफाइन भी करना है तो कांस्टेंट वेरिएबल, सीओएनएसटी कांस्टेंट यूज करते हैं हम लोग. तो एलडब्ल्यूसी बहुत ही फ्लेक्सिबल है. एलडब्ल्यूसी में चीजें डायरेक्टली असाइन होती है. वहां पे कोई पैटर्न और कोई सिंटैक्स फॉलो नहीं करना पड़ता है. एनीवेज, तो फिर मैंने यहाँ से इसको पोस्टल पिन कोड नाम के एक वेरिएबल में दे दिया. उसकी सारी, उसके बाद की कहानी आपने पूरी देख ली है. वो फिर यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है. जो भी वैल्यू आपने दिया वो यहाँ से ट्रांसफर हो जाती है, और वो चली जाती है आपके कोड पे, आपके बिजनेस लॉजिक पे, जहाँ पर आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है जिसका नाम है पोस्टल पिन कोड. यहाँ से फिर सारा लॉजिक इधर से रन होता है. एनीवेज, अब वो जब वापस आता है, रिस्पॉन्स लेके अपने साथ आता है, तो वो रिस्पॉन्स जो लाया उसने, दैट रिस्पॉन्स वी हैव स्टोर्ड इट इनसाइड अ लिस्ट कलेक्शन. हमने ये जो रिस्पॉन्स है, दैट एवरीथिंग वी हैव कलेक्टेड, एलएसटी ब्रांचेस, इसके अंदर वो रिस्पॉन्स हमने ऐड कर रखा है. तो जो रिस्पॉन्स हमको मिला है वो एक कलेक्शन के अंदर है जिसका नाम है एलएसटी ब्रांच. उसके बाद में फिर मैं एक एक्शन बटन वगैरह हमने दे रखा है. एक्शन बटन है, और एक्शन बटन क्लिक करने के बाद में व्हाट शुड हैपन, तो ये मेथड जो है हमारी सर्च पोस्टल ब्रांचेस, ये मेथड एग्जीक्यूट होनी चाहिए. इसलिए एक्शन बटन पे फिर मैंने यहाँ पे ये कर रखा है, ठीक है. पोस्ट सर्च पोस्टर वो मेथड को कॉल कर रखी है. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. अब जो रिस्पांस हमको मिला है, दैट रिस्पांस इज इनसाइड अ कलेक्शन. कलेक्शन का नाम है आपका एलएसटी ब्रांचेस. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक दूसरा पेज ब्लॉक यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे ये दिखता है कि लाइक कितना रिकॉर्ड्स है आपके पास में. कैसे दिखता है? एलएसटी ब्रांचेस डॉट साइज. साइज मेथड आपको पता है, कलेक्शन के साथ में जो साइज मेथड होती है, दैट आई हैव यूज्ड यहाँ पे. तो यहाँ पे वो दिखता है लाइक कितनी है. तो जैसे अभी आप इसको अगर रिकॉर्ड मारते हो सर्च, तो यू गॉट 6 रिकॉर्ड्स, है ना. तो 6 रिकॉर्ड्स मिले. तो बस वो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे देखनी है वो है पेज ब्लॉक टेबल. पेज ब्लॉक टेबल में वैल्यू पैरामीटर एसेंशियल होता है. आप पेज ब्लॉक को विदाउट वैल्यू के से डिफाइन नहीं कर सकते. अगर आपने वैल्यू नहीं दी है तो पेज ब्लॉक जो है इट्स ऑलवेज गोइंग टू गिव द एरर. तो यहाँ पे वैल्यू जो दी, मैंने उस कलेक्शन को वैल्यू दी कि भाई एक टेबल बनाना है जिसका वैल्यू है कलेक्शन, एलएसटी ब्रांचेस, जहाँ पे आपने रिस्पॉन्स स्टोर कर रखा है. कॉलम्स को नेम दिया आपने, नेम, ब्रांच, डिलीवरी, सर्कल, वो सारे यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, है ना. नेम, ब्रांच, डिलीवरी, हेडर, हेडर वैल्यूज मतलब उसके नाम, ठीक है, ये सारे हो गए.
और उनका वैल्यूज क्या आना चाहिए, तो उनका वैल्यू जो आना चाहिए वो आना चाहिए। जैसे इसका हमने एक var डिफाइन किया हुआ है, इसका हमने एक var डिफाइन किया हुआ है। var मतलब दिस इज एज गुड एज फॉर लूप आप करते हो ना, फॉर अकाउंट एसीसी इक्वल्स टू जो भी आपका है, तो वो एसीसी से आप रेफर करते हो, एसीसी डॉट नेम, एसीसी डॉट, है ना, बस उस तरह से। तो एसीसी डॉट नेम बी आर, यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिफाइन किया बी आर डॉट नेम बी आर डॉट वो, उस तरह से इसकी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो रही है। दैट्स इट। So this is what is an inbound integration. I would take one more example or possible two more example. ठीक है, अब मैं इसके बाद में कस्टम सेटिंग्स का एक कंसेप्ट है वो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ विद द नेक्स्ट एग्जांपल। चलो, that's all for today guys. Thank you so much for giving your time and your patience. You have any questions, please do ask me now. Otherwise I'm good to end this. Good morning, sir. Fine. Hello. Good morning, sir. Good morning, tell me. So Yes, actually, I'm Sarfaraz. having one हाँ error. हाँ Uh, हाँ Let me send this on a group. हाँ, you send it something. I have seen that. I was not able to debug it. Try this with ChatGPT or Google, or try with certain resources. What, see, the cause of your error was, even you were exceeding the DML, I mean the DML limit. Even though if you are performing it inside a batch program, if you are using it inside a loop, so DML maximum, how many DMLs could be executed? When a DML is executed, maximum data what it could fetch is around 10,000. That's why you were getting that error, DML exception, and 10,001 was the error. तो आप जहां आपने डीएमएल परफॉर्म करी है जिस लूप के अंदर, उस लूप को आप अच्छे से देखो, और आपका जो लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, इट इज एग्जीक्यूटिंग मोर देन 10,000 वन टाइम। तो इसका मतलब जो डीएमएल से जितना भी हम रोज फेच करते हैं उसकी लिमिट क्रॉस हो रही है। तो मैक्सिमम एक डीएमएल फायर करके यू कुड मैक्सिमम रोज, जो व्हाट यू कैन, व्हाट यू कैन इंसर्ट अपडेट वट एवर डीएमएल इट इज, यू कैन मैक्सिमम परफॉर्म अ डीएमएल ऑन 10,000 रिकॉर्ड्स, एंड समवेयर अराउंड इन योर प्रोग्राम यू आर ट्राइंग टू डू दिस बियॉन्ड दैट। तो उसी वजह से आपको 10,001 का एरर है। तो आप अपने प्रोग्राम को इवेल्युएट करो कि कहाँ पे आपका लूप के अंदर डीएमएल है, और या फिर आपकी डीएमएल जो हो रही है वो 10,000 से ज्यादा क्यों फायर हो रही है। ठीक अच्छा, है, ठीक तो है। वो आप सर देखो। असल में एक और एरर था। मैंने असल में क्या किया था, ये चाइल्ड क्वेरी लिखना था मुझे, नहीं अपना रिलेशनशिप क्वेरी लिखना था। उसमें हम्म कस्टम पेरेंट से कस्टम चाइल्ड के जितने भी डिटेल्स है ना, वो सब फेच करने के लिए हम्म मैंने क्या ट्राई एरर? किया था, जिसमें अपना हायरिंग मैनेजर जो है वो पेरेंट है, और उसका हम्म चाइल्ड पोजीशन और उसका चाइल्ड कैंडिडेट। हम्म नहीं, हायरिंग मैनेजर का चाइल्ड पोजीशन और हायरिंग पोजीशन का चाइल्ड कैंडिडेट। तो हम्म सर आपको ग्रुप पे सेंड किया है, उसमें एक एरर आ रहा था, एसक्यूएल स्टेटमेंट कैन नॉट क्वेरी एग्रीगेट रिलेशनशिप मोर देन वन लेवल। तो आपने एग्रीगेट रिलेशनशिप काउंट वगैरह फंक्शन यूज किया है क्या? नहीं सर, एक ऑलराइट, ग्रुप पे मैं सेंड किया ठीक है है, मैंने। मैं क्वेरी फॉर्म कर देता हूँ, मैं देखा नहीं, मैं क्वेरी फॉर्म कर देता हूँ, दे देता हूँ। ओके सर। एनीथिंग एल्स? नो सर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।